Job hunting sucks in India, especially for entry-level roles. और इसी चीज को प्रूव करने के लिए I'm gonna analyze 500 plus job postings posted in the last 3 months. और साथ में ये भी पता करेंगे कि कितना और किस टाइप के एक्सपीरियंसेस की डिमांड कंपनीज फिलहाल कर रही है. Must have 3 to 5 years of industry experience. ये एंट्री लेवल है. Let me explain. All right. तो ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, it's a side hustle. And if this is not your first time watching my videos, तो आपको पता होगा कि मैं पेशे से एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ. I have a day job and I have been through this tedious process of looking for a job. It's humiliating, exhausting and absolutely frustrating to say the least. As a matter of fact, 2 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद भी आज जब मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, this is how it's going on. Hi, I'm Fresher Fuddu. What do you want? Here is the resume that you guys asked for. Okay, thank you. So which college? Oh, NIT Agartala. It's mentioned in my resume along with all the relevant projects and everything else. Any relevant work experience? Oh no, this is an entry level job, right? Yes. That's why we are looking for just 3 to 5 years of relevant experience. Oh, I'm so sorry. I don't have that. But I have done some really amazing. Oh well, amazing. Thank you. We'll let you know. You will hear from us soon. And you and I both know we mostly never hear back from them. As a matter of fact, not hearing back from the recruiters is the second biggest job hunting frustration for you guys. Yes, you guys. क्योंकि मैंने पूछा था आप लोगों से Instagram पे about your biggest and best job hunting frustrations. And this came out to be the biggest frustration for most people. Entry level job के लिए भी 3 साल से ज़्यादा के experience की requirement. So basically now we need to have work experience to start working. The capitalistic version of the chicken and egg problem. लेकिन आखिर ये किस हद तक सच है? Is this really a nationwide problem? या फिर ये बस एक anecdotal bias है हमारा? आपको अपना करियर सही से शुरू करने के लिए सच में कितना और किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? आखिर कंपनीज ऐसा करती क्यों है? एंड इफ दिस इज रियली अ थिंग, तो लोगों को नौकरियां मिल कैसे रही? और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसका सोल्यूशन क्या है? That's what you and I are gonna figure out in this video. So, इस चैनल पर हम हवा में बातें नहीं करते. We try and test things out and then give our opinion and share our experiences. And to do that in this case, we need data, जो कि हमें मिलेगा 2 वेबसाइट से, LinkedIn and Naukri. क्यों? क्योंकि these are 2 of the biggest job search portals in the Indian job market. तो मैं इन 2 वेबसाइट्स से लास्ट 3 महीनों में जितने एंट्री लेवल जॉब पोस्ट हुए हैं उनका एक सैंपल डेटा सेट उठाऊंगा, उसको एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करूंगा कि कंपनीज फिलहाल एंट्री लेवल रोल्स के लिए कितना और किस टाइप के एक्सपीरियंसेस की डिमांड कैंडिडेट से कर रही है. ओह, एंड टॉकिंग अबाउट डेटा, about 85% of you watching these amazing high effort videos are not subscribed to the channel. क्या कर रहे हो यार? एक तो पहले से ही वर्कलोड की वजह से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग ऐसा करोगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा बताओ? प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. सब्सक्राइब. तो पहले मेरा प्लान था इसे पूरा स्क्रैच से करने का थ्रू वेब स्क्रैपिंग.
like a proper data analytics project. For the non-tech viewers जिन्हें पता नहीं है कि web scraping क्या होता है, दुनिया का हर एक web page is made up of these containers that hold information about the web page. तो हम कोड लिखते हैं to look into these containers and retrieve specific information that we need. लेकिन problem ये है कि most of the popular sites do not allow web scraping legally, या फिर they put a limit on it. जुगाड़ है VPN, या फिर थर्ड पार्टी स्क्रैपर्स भी अवेलेबल हैं which are obviously paid, but that's not the problem. प्रॉब्लम ये है कि it is a very time consuming job. बहुत वक्त लग जाता है and it requires a decent PC. And my laptop here is Intel Core i7 3rd Gen. Yes, I repeat, 3rd Gen. 10 साल पुराना लैपटॉप है ये. So I tried, but I failed. और इसलिए मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता नहीं था. हाँ, तो ChatGPT, Gemini और Perplexity तीनों पर एक अच्छा खासा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डाल दिया है. डीप रिसर्च हो रहा है, और अगर आपने पहले डीप रिसर्च वाला फीचर यूज किया है तो यू वुड नो कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट्स को एनालाइज करके रिट्रीव करने में. तो जब तक ये तीनों अपना काम कर रहे हैं तब तक हम एक दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं. क्यों? Whatever the numbers come out to be from this research, जो भी कंपनीज एंट्री लेवल रोल्स के लिए एक्सपीरियंस ढूंढ रही हैं, वो एक्सपीरियंस आखिर कंपनीज ढूंढ क्यों रही है? Why is that? Let's find out. तो कड़ी मशक्कत के बाद मुझे 4 वैलिड रीजंस मिले हैं कि कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है. जिसमें से पहला है इनिशियल स्क्रीनिंग. जिस रीजन की वजह से हम लोग जेईई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स देते हैं, इसके पीछे रीजन भी वही है. हर साल इंडिया में तकरीबन 1 करोड़ स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं. एंड फॉर रेफरेंस, स्वीडन जैसे एक देश की पूरी आबादी 1 करोड़ है. कुछ ही दिनों पहले ब्लिंकिट के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए 13,000 लोगों ने अप्लाई किया. और पिछले साल का ये वाला वायरल वीडियो तो आपने देखा ही होगा. सिंपल सा सप्लाई डिमांड का हिसाब है. क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड इतना ज्यादा है, तो कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने के लिए कुछ जेनेरिक डेटा पॉइंट्स का यूज किया जाता है, वन ऑफ विच is experience, which is why sometimes companies don't even look for relevant experience for this entry level roles. They just ask for some sort of legit experience just to filter out these outrageous numbers of applications. दूसरा reason है cost reduction. The faster they start generating revenue for the company. Freshers को ढंग से train करने में ही बहुत time लग जाता है. And it's not just about job specific training. It's also about what's expected of an employee in the workplace dynamic. एक ऐसा employee जिसे इस कॉर्पोरेट लैंडस्केप को नेविगेट करना आता है, वो मोर ऑफन देन नॉट सीख भी जल्दी लेता है, इवन इफ दैट पर्सन डज नॉट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस. क्योंकि एक रियल कॉर्पोरेट सिनेरियो में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जो नॉलेज चाहिए होता है, वो हमारे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम में सिखाया नहीं जाता. विच इज द थर्ड रीजन, आवर आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम एंड आवर माइंडसेट टुवर्ड्स इट. मैं तुम लोगों को कुछ स्टैट्स बताता हूँ. About 60% of the Indian youth को मॉडर्न स्किल्स जो एक्चुअल जॉब में चाहिए होता है, वो आना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उनके बारे में सुना भी नहीं है. हर साल ये जो 1 करोड़ युवा अपने देश में से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तादाद में इंजीनियर्स निकल रहे हैं. लेकिन उन्हीं में से 80% इंजीनियर्स को कोई भी न्यू एज टेक्नोलॉजी नहीं आती. एमबीए वालों का हाल तो और भी खराब है. 93% एमबीए ग्रेजुएट्स को कंपनियां जॉब देने से मना कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में जो सीखा है वो इंडस्ट्री में 15-20 साल पहले काम आता था. और रूरल इंडिया का तो चलो बात ही नहीं करते हैं. वहां के 80% यूथ के पास वोकेशनल ट्रेनिंग तक नहीं है. स्कूल कॉलेजेस चाहे किसी भी डिसिप्लिन का हो, चीजें सारी आउटडेटेड ही पढ़ाई जा रही है. और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. जो चीजें उन्हें खुद नहीं आती वो बच्चों को क्या सिखाएंगे. खैर, इस पर तो एक पूरा वीडियो अलग से बन सकता है. फॉर नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ एंड फाइनल रीजन, the fast changing landscape. The very definition of entry level job roles and the skills required to get into one has changed significantly, especially in the past few years. ज़्यादातर entry level काम
जो रेपिटेटिव है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल्स, कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स नहीं चाहिए होते, वो तो ऑटोमेट हो जा रहा है। यू कैन ट्राई टू फाइट इट, यू कैन ट्राई टू डिनाई इट, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंजेस थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, जिन्हें मैसिव रेजिस्टेंस मिला था ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज, वो आज हमारे लिए सिर्फ नॉर्मल ही नहीं है, बल्कि अ लॉट ऑफ देम आर सच दैट उनके बगैर हम जीना सोच भी नहीं सकते। One such equipment or revolution was computer. Another one was the internet. दोनों को heavy backlash मिला था, ठीक वैसे ही जैसे आज AI को मिल रहा है। Everything from our cell phones and computers to the calculators and even the blackboard. So eventually, the usage of AI and all these automations will get normalized. नुकसान सिर्फ उन लोगों का होगा जो वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे। आई वंस मेड ए डिटेल वीडियो ऑन कि AI से किसको और किस तरह के जॉब्स को खतरा है। यू कैन वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इतना सारा लो लेवल, लो एफर्ट काम ऑटोमेट हो जाने की वजह से मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल जॉब्स नाउ एक्सपेक्ट ए हायर डिग्री ऑफ स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ work that formal education alone cannot prepare you for. So most employers just jump ahead and ask for prior experience because it's more convenient for them that way. चलो ये तो थे रीजंस कि क्यों एंट्री लेवल जॉब्स के लिए एम्प्लॉयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए? बिना एक्सपीरियंस के अगर जॉब चाहिए तो वो कौन सी जॉब मिलेगी और कैसे मिलेगी? और अगर तुम फ्रेशर हो तो ये जो कंपनीज एक्सपीरियंस पूछ रही है वो एक्सपीरियंस लाए कहाँ से? सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि हमारे जेमिनी GPT और परप्लेक्सिटी भैया का रिसर्च हो चुका है खत्म, और उसको पढ़ के, समझ के, एनालाइज करके, कंसोलिडेट करके मैंने ले लिए हैं नोट्स। और इनका कहना है कि अबाउट 70% ऑफ द जॉब्स पोस्टेड इन लिंक्डइन एंड नौकरी फॉर इंडिया इन द लास्ट 3 months वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अगर आपने आज से पहले किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का काम कभी नहीं किया है तो आप 70% ऑफ दिस जॉब्स के लिए एलिजिबल ही नहीं। 70। और उसमें से भी अबाउट 38% जॉब्स में द एवरेज मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 3+ years of experience। क्या मजाक है। However, that's the average. The good part is that the vast majority of jobs that required experience only asked for about 1 to 2 years of experience, which I think is a fair ask considering the reasons we just discussed. लेकिन freshers का क्या? उनके लिए तो 1-2 साल का experience भी बहुत ज़्यादा है। That's where the remaining 30% jobs come in, जिसके लिए कोई experience नहीं चाहिए। These job posts are mostly comprised of India's large IT services companies like TCS, Wipro, Infosys, etc. जो कि फ्रेशर्स की मास हायरिंग करती है फॉर रोल्स लाइक IT सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट मॉडरेशन एंड मेनी सच BPO KPO रोल्स। एब्सोल्यूट फ्रेशर्स के लिए जो ऑफ कैंपस रोल्स है उनमें से मेजॉरिटी चंक इन्हीं का है एंड अ वेरी स्मॉल चंक इज फ्रॉम सेक्टर्स लाइक ई-कॉमर्स, एडटेक, रिटेल एंड स्टार्टअप्स फॉर रोल्स लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग। तो क्या इसका मतलब यह है कि फ्रेशर्स के लिए अच्छे हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं? जी नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं होंगे। अब तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेकर, सॉल्यूशन के बारे में बात करना तो अभी हमने बस शुरू ही किया। तो सबसे पहला सॉल्यूशन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं है। ये यूडेमी और कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस कर लेना अच्छी बात है, मैंने भी किया है, रेकमेंड भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, इससे जॉब नहीं मिलता। हाँ, if you have acquired a certification through a recognized proctored exam by a recognized body, तब ठीक है। जैसे कि Salesforce के सर्टिफिकेशंस, Azure, AWS के सर्टिफिकेशंस, PMI के सर्टिफिकेशंस and many more like those। वरना ये सब Udemy, Coursera, Skillshare के कोर्सेज तो कोई भी स्प्रिंट रन करके सर्टिफिकेट ले लेगा। प्रूफ ऑफ वर्क कहाँ है? प्रोजेक्ट्स, which is our actual first solution. Show that you have hands-on experience through project. जैसे कि
I want to show the recruiter कि I have a complete understanding of how a product, a digital product is built. तो उसके लिए मैंने बनाया ये वाला habit tracker through vibe coding. This is my project. तो तुम अपने रोल के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो और उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके अपने रिज्यूमे पर ऐड करो. और एक बात याद रखना, डू नॉट कॉपी जेनेरिक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटरनेट. ट्राई टू ऐड सम ऑफ योर ओन एलिमेंट टू इट. तुम इंस्पायर होने के लिए उन्हें देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद के लाइफ से इंस्पायर होके उसमें कुछ अपना एलिमेंट ऐड कर दो. जैसे कि हैबिट ट्रैकर्स तो बहुत लोग बनाते हैं, हैबिट ट्रैकर्स बहुत सारे अवेलेबल भी हैं, लेकिन मैंने अपने हैबिट ट्रैकर में लेवल सेट किए हैं जहाँ पर आप खुद का लेवल डाल सकते हो. मैं हर दिन फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन की हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं रीडिंग की हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ. अब हर दिन मैं 30 मिनट्स रीड नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया कि हाउ आई यूज्ड टू डॉक्यूमेंट इट, कि मैं अपने जर्नल में ये मेंशन करता था कि मैंने उस दिन कितने टाइम तक बुक को पढ़ा, एंड उसी से इंस्पायर होके मैंने ये हैबिट ट्रैकर बना दिया जिसमें आप अलग अलग लेवल्स डाल सकते हो. दैट स्टार्ट्स विद द शो ऑफ लेवल, कि मेरे पास आज बहुत कम टाइम था तो मैंने सिर्फ किताब का एक पन्ना पढ़ा, बट आई डिड नॉट ब्रेक द हैबिट. और ऐसे ही धीरे धीरे एक हैबिट बनता है. ठीक इसी तरह टेक अप अ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ और उसका सोल्यूशन शायद ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसको देखो एंड थिंक अबाउट कि तुम उसको खुद के लिए कैसे कस्टमाइज कर सकते हो. इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग दैट सेल्स दैट पीपल ऑलरेडी पेज फॉर. ऑल्दो इफ यू कैन बिल्ड समथिंग जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, दैट इज तो एब्सोल्युटली अमेजिंग. लेकिन अगर वो नहीं भी कर पा रहे हो तब भी ट्राई टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. दूसरा सोल्यूशन, internships, because they count as relevant experience. Just like we discussed, companies बस इतना अश्योर करना चाहती है कि कैंडिडेट को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता. एंड इफ यू थिंक तुम्हें इंटर्नशिप ढूंढ के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे कॉलेज की है, तब तो यू आर इन फॉर ए वेरी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट माय फ्रेंड. देखो टेक्निकली हाँ, ये तुम्हारे कॉलेज की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास चॉइस ही क्या है. या तो तुम सिस्टम की कमियां खामियों को लेके बैठ के रो सकते हो, या फिर यू कैन टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स एंड गिव इट ऑल यू हैव. इंटर्नशिप्स पर एक पूरा वीडियो अलग से बन सकता है, कहाँ ढूंढना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए वगैरह वगैरह. अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं बना दूँ. कमिंग बैक टू द थर्ड सोल्यूशन, गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज. आई नो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी साउंड कर रहा है, बट हियर मी आउट. देखो, डिस्पाइट द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव, डिग्रीज और अच्छे कॉलेजेस मैटर करते हैं, बट नॉट फॉर द एजुकेशन दैट दे प्रोवाइड, इट्स फॉर द पीयर एंड द नेटवर्क. पहली बात तो ये है कि आईआईटीज और आईआईएम्स में पहले ही बच्चे ऐसे छांट लिए जाते हैं कि कंपनीज को पता होता है कि इन कॉलेजेस में बच्चे पहले से ही मेहनती हैं, वरना ये लोग ये एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाते. और कुछ ना सही, एटलीस्ट इनको मेहनत करना आता है, सीखना आता है, स्ट्रेस से डील करना आता है. काम जो भी हो, इनको इजीली सिखाया जा सकता है. हाँ, मुझे ये भी पता है कि रिसेंटली किसी आईआईटी में लोएस्ट पैकेज 4 लाख तक ड्रॉप हो गया था, बट इफ यू टॉक टू पीपल who are working in the industry, तो you would know कि कॉलेज के टैग को आज भी कुछ हद तक वैल्यू किया जाता है. It's sad, but it's true. But that does not mean कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क है, अगर आप सच में स्किल्ड हो, तब भी आपको सिर्फ अपने कॉलेज के टैग की वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. अगर आप ये खुद को बोल रहे हो ना, you are just giving yourself excuses. क्योंकि दोस्त, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसका फल मिलता ही है. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक अच्छे कॉलेज का टैग है तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है. दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड. फोर्थ सोल्यूशन, एंड दिस इज समथिंग जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी. एंड बाय दैट आई डोंट मीन द काइंड ऑफ रोल्स जहां पर तुम लोगों को कॉल करके किसी एनजीओ के लिए बस डोनेशन मांगते हो. ऑल्दो ऐसे वाले वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करना भी आपके रेज्यूमे को एक डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एंगल देता है, बिकॉज दिस काइंड्स ऑफ वॉलंटियरिंग वर्क जहां पर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हो, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत फास्ट पेस्ड, एम्बिग्यूअस रहता है.
एंड कंपनीज लव दैट। इस टाइप के वॉलंटियरशिप्स को करने का बेस्ट तरीका है जिस भी सिटी में तुम रहते हो वहीं पे ऐसे किसी एनजीओ, ग्राम सभा या क्लब के साथ काम करना जो ग्राउंड लेवल पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। या फिर यू कैन ऑल्सो विजिट दिस साइट आई वॉलंटियर। यहाँ पर कई सारे ऐसे एनजीओज के अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर रिमोट एज वेल। बट लाइक आई सेड, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है। जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि हार्ड स्किल्स के भी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज होते हैं इन वेबसाइट्स लाइक वॉलंटियर मैच, कोड फॉर अमेरिका, कैच ए फायर एंड इवन आई वॉलंटियर। इन वेबसाइट्स में आई हैव सीन अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट्स, social media managers, digital marketing, project management and even video game production. लेकिन हाँ, these roles are rare, so you might have to wait for a while to get a role of your liking. तो पहले से प्लान करो, keep checking the portals every day for new roles and you will eventually find one. Also, apply to multiple roles. कभी कभार क्या होता है कि वो रोल फिल हो चुका होता है लेकिन पोस्ट फिर भी रह जाता है, तो इफ़ यू मेल देम और इफ़ यू अप्लाई टू देम वो रिप्लाई नहीं करते। दीज एप्लीकेशंस आर जस्ट लाइक अदर जॉब एप्लीकेशंस एंड इफ़ यू थिंक दिस इज टू मच वर्क तो क्या ही कर सकते हैं, बैठे रहो और शॉर्टकट ढूंढते रहो। जो ये टू मच वर्क करने के लिए तैयार होंगे वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी लेके चले जाएंगे। पांचवा सोल्यूशन, हैकेथॉन्स, केसेथॉन्स एंड अदर कॉम्पिटिशंस। एंड नो, Hackathons are not just for coders. Non-tech roles के लिए भी hackathons होते हैं। Two of the best websites for finding these hackathons and caseathons are Unstop and DevPost. इसमें और एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। In both these websites आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो कि क्या क्या अवेलेबल है। Some of these competitions require you to have a team. तो ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जो तुम्हारे ही साथ नौकरी ढूंढ रहा है। And by the way, hackathons are not just for students. Yes, they are more popular among students, लेकिन कई सारे experienced individuals भी डोमेन चेंज, कंपनी चेंज या इंडस्ट्री चेंज करने के लिए ये ओपन टू ऑल हैकेथॉन्स में या केसेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ द सिक्स्थ एंड द फाइनल सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन है जो मैंने खुद डिलीजेंटली फॉलो किया है एंड इट हैज समवट चेंज माई लाइफ। Apprenticeship programs. This is the kind of role that's more than an internship. आपका काम इंटर्न से ज़्यादा रहता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी इंटर्न्स से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक फुल टाइम एम्प्लॉय से कम रहता है। इट फॉल्स समवेयर इन बिटवीन। अगर आप गूगल बाबा से पूछो तो वो बताते हैं, an apprenticeship is a structured training program where an individual called an apprentice learns a specific trade or skill by working alongside an experienced individual. Basically, आप जिस भी रोल के अप्रेंटिसशिप में जाओगे, एक फुल टाइम एम्प्लॉय उस रोल में जैसा काम करता है आपको भी वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीनियर असाइन किया जाएगा who would help you out whenever you are stuck at work and even provide mentorship so that you can learn. कुछ कंपनीज इसके पैरेलल आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और एक फन फैक्ट बताओ, अप्रेंटिसशिप इज नॉट अ न्यू एज कॉन्सेप्ट। लियोनार्डो दा विंची started painting as an apprentice. लेकिन एक दुविधा यह है कि इंडियन कंपनीज अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड नहीं करती, बाहर की कंपनीज करती है, लेकिन अप्रेंटिसशिप्स के लिए इंटरनेशनल हायरिंग नहीं करती। कंपनीज लाइक Pinterest एंड LinkedIn हैज अमेजिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, लेकिन ये रोल्स सिर्फ यूएस और कनाडा में ही ओपन होते हैं एंड दे डू नॉट प्रोवाइड वीजा स्पॉन्सरशिप फॉर दिस रोल्स। द ओनली फेमस बिग टेक कंपनी दैट प्रोवाइड्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स फॉर इंडियंस to this date, at the time of recording this video, is Google. And the best part is that this role is open to people from all backgrounds and experiences. If you want to know more about it, मैं इस पर एक detailed video already बना चुका हूँ where I have answered all the most frequently asked questions about the apprenticeship program at Google. Here is that video. I'll see you there. Bye.